મમતા ગામે શારીરિક અને માનસિક રોગીઓને સારવાર આપતી સંસ્થા અપના ઘર આશ્રમ. વિસનગર તાલુકાના ઉમતા ગામે મુનિ નિર્ભય સાગર જન કલ્યાણ સમિતિ સંચાલિત અપના ઘર આશ્રમમાં શારીરિક અને માનસિક રીતે અશક્ત લોકોની સારવાર કરવામાં આવે છે, જેમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી આ સંસ્થા સમગ્ર ગુજરાતમાંથી શારીરિક અને માનસિક રીતે અશક્ત હોય તેવા લોકોને સેવા કરે છે. જેમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી આ સંસ્થા સમગ્ર ગુજરાતમાંથી શારીરિક અને માનસિક રીતે અશક્ત હોય તેવા બીમાર લોકોની સેવા કરે છે. સાથે સાથે અપના ઘર આશ્રમ દ્વારા અબુલ પશુઓ અને પક્ષીઓની પણ સેવા કરવામાં આવે છે. અપના ઘર આશ્રમ સેવા કાર્યમાં અગ્રેસર રહે છે. અપના ઘર આશ્રમમાં વર્તમાનમાં હાલ 36 પ્રભુજીઓ વસવાટ કરે છે. શારીરિક અને માનસિક અશક્ત લોકોને અપના ઘર આશ્રમમાં પ્રભુજીનું માન આપીને બોલાવવામાં આવે છે. ભગવાન સમાન માનીને આ અશક્ત લોકોની સારવાર કરવામાં આવે છે. સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા પણ અપના ઘર આશ્રમમાં સેવા પૂરી પાડે છે. આ ઉમતા ગામે કાર્યરત અપના ઘર આશ્રમમાં શારીરિક અને માનસિક અશક્ત લોકોની તન અને मनથી સેવા કરવામાં આવે છે. मेरा नाम पदम कुमार जैन है. मैं यूको बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ और ये स्थान जो अपना घर का है ये मुनि निर्भय सागर जन कल्याण समिति का पूरा परिसर है जिसमें अपना घर कार्यरत है. 25 दिसंबर 2018 में सद्भाग्यवश मेरे को भरतपुर जाने का अवसर मिला. वहाँ पर अपना घर का जो प्रधान कार्यालय है वहाँ से संपर्क हुआ तो उनका सेवा प्रकल्प देखकर ऐसा लगा कि ऐसा सेवा इस स्थान पर भी होनी चाहिए. तो इस भाव से यहाँ पर महाराज श्री से अनुमति लेकर इस कार्य को प्रारंभ करने का प्रयास किया गया और मात्र 2 महीने में 25/2/2019 में अपना घर आश्रम को प्रारंभ कर दिया गया. प्रारंभ में धीरे धीरे प्रभु जी की संख्या कम थी. बाद में तीव्र गति से जैसे जैसे लोगों को पता लगने लगा तो प्रभु सेवा में बढ़ोतरी होने लगी. अभी तक हमारे पास कुल मिला के 154 प्रभु जी यहाँ पर आ चुके हैं. इसमें से प्रभु जी स्वस्थ होकर 37 प्रभु जी घर जा चुके हैं. 8 का प्रभु इच्छा से स्वर्गवास हो गया और 72 प्रभु जी को हमने बेहतर सेवा के लिए, बेहतर ट्रीटमेंट के लिए प्रधान कार्यालय भरतपुर भेजे. वर्तमान में हमारे यहाँ पर 37 प्रभु जी आवासित हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सब प्रभु जी बहुत स्वस्थ हैं. उनकी बहुत अच्छी सेवा परिचर्या होती है और हमारे जो सेवा साथी हैं वो उनकी बहुत तन मन से निष्ठापूर्वक समर्पित भाव से सेवा करते हैं. રાજસ્થાનના ભરતપુરમાં અપના ઘર આશ્રમની મુખ્ય સંસ્થા આવેલી છે, જ્યાં સમગ્ર ભારતમાંથી શારીરિક અને માનસિક રોગીઓની સારવાર કરવામાં આવે છે. 3000 બેડ સાથે સુવિધા ભરતપુર રાજસ્થાનમાં ઉપલબ્ધ છે. આગામી સમયમાં 11000 બેડની સુવિધા કરવાની પણ તૈયારી ચાલુ છે. તેની પ્રેરણાને આધારે વિસનગર તાલુકાના ઉમતા ગામે પણ અપના ઘર આશ્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં શરૂઆતના સમયમાં પ્રભુજીની સંખ્યા ઓછી હતી, પરંતુ સમય જતાં 154 પ્રભુજીની સારવાર કરવામાં આવી છે, જેમાંથી 37 પ્રભુજી સારવાર લઈને ઘરે ગયા છે. જેમના પરિવારમાં કોઈ ન હોય, શારીરિક અને માનસિક અશક્ત હોય તેવા લોકોની સેવા અપના ઘર આશ્રમમાં કરવામાં આવે છે. અપના ઘર આશ્રમમાં આવતા તમામ પ્રભુજીઓને મફતમાં સારવાર, રહેવાની, જમવાની સગવડ આપવામાં આવે છે. અપના ઘર આશ્રમ દ્વારા પ્રભુજી તણાવ મુક્ત રહે તે માટેની પણ કામગીરી કરવામાં આવે છે. તમામ પ્રભુજીઓ એકબીજા સાથે હળીમળીને રહે છે. અપના ઘર આશ્રમમાં એમ્બ્યુલન્સની સારવાર પણ ઉપલબ્ધ છે. તમામ ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા પ્રભુજીની સેવા કરવામાં આવે છે. તમામ સ્ટાફ દ્વારા પણ તેમની પ્રવૃત્તિને સાથે રાખી કામગીરી કરવામાં આવે છે. અપના ઘર આશ્રમમાં પ્રભુજીઓને ઘર જેવું વાતાવરણ મળી રહે છે અને જલ્દીથી સ્વસ્થ થઈને પોતાના ઘરે પણ જાય છે. આ મમતા ગામે અથાક મહેનત થકી ટ્રસ્ટીઓ, સેવાભાવી સંસ્થાઓ વગેરે દ્વારા પ્રભુજીની સેવા કરવામાં આવે છે.
અપનાગર આશ્રમ દ્વારા જીવ માત્રની સેવા કરવાનો એકમાત્ર સંકલ્પ છે। और हमारे प्रभु जी बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं। प्रसन्नचित्त रहने के कारण से जैसे जैसे वो स्वस्थ होते जाते हैं तो हमें वो अपना कार्य में भी योगदान देते हैं, जैसे कपड़े धुलाई में, सुखाने में, रसोई में, गार्डनिंग में, वृक्ष लगाने में, और यहाँ तक कि एक दूसरे को प्रभु जी बहुत सहयोग करते हैं। कोई प्रभु जी बीमार है तो वो एक दूसरे का सहयोग करने शुरू कर देते हैं। शुरू में जब आते हैं तो बहुत तूफ़ानी प्रवृत्ति में होते हैं, परंतु उनकी जो सेवा परिचर्या होती है तो उसके बाद इतने शांत हो जाते हैं कि कभी कभार कोई ही मुश्किल से घर जाने की बात करता है, अन्यथा यहाँ पर रहकर वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पर आश्रम जब से चला तब से ये तीव्र गति से सेवा की गति में आगे बढ़ता जा रहा है और हमें इसमें सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। सहयोग की बात करें तो अपने गांव से जो भी गणमान्य महानुभाव हैं उनका हमें यहाँ पर बहुत सहयोग मिल रहा है। एम्बुलेंस उनसे मिली है। गांव वालों का कोई भी फंक्शन होता है, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, तो वो अपना घर से जुड़ते हैं। हमारी एक कार्यकारिणी है जो मिलकर इस कार्य को संपादित करती है और समय समय पर हम इसको और आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सेवा कैसे दे सके उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो अभी हमारे जो यहाँ पर जो प्रभु जी हैं वो सब मेल प्रभु जी हैं। इसके अतिरिक्त अभी हमारी कोई विशेष सेवाएं यहाँ पर नहीं थी, परंतु अभी धीरे धीरे हम यहाँ पर सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं। सेवाओं के विस्तार में हमने अभी 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया है। यहाँ पर बच्चे आए, बड़े आए, बूढ़े आए, उन्होंने यहाँ वृक्षारोपण किया। एक सार्वजनिक प्याव का प्रारंभ भी यहाँ से किया गया है। इसके अतिरिक्त हम एक एनिमल और बर्ड हेल्पलाइन सेंटर भी यहाँ पर खोलने जा रहे हैं। इसके साथ महिला प्रभु जी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि दुखी है, जिसकी सेवा नहीं हो पा रही है और परिवार में कोई नहीं है, तो हम उसको यहाँ पर लाकर उसको अंत समय तक के लिए शांति देते हुए उसकी सेवा करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। हमारा उद्देश्य जीव मात्र प्राणी की सेवा करना, ये इसका सर्वोपरि उद्देश्य है। इसमें हमारे आचार्य श्री मुनि निर्भय सागर यहाँ पर जो विराजते हैं, उनका कहने का यही आशय है कि जितनी अच्छी हम सेवाएं मानव की कर सकें, पशु पक्षी की कर सकें, जीव मात्र की कर सकें, यही हमारा सबसे बड़ा इस समय में धर्म है और इसी भाव से हम कार्यरत हैं। हमारे प्रभु जी के लिए आसपास से मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती है। हमारे लोकल पीएचसी सेंटर में जो डॉक्टर भोजक सर है वो बहुत अच्छी सेवा प्रभु जी को देते हैं। पास में नूतन मेडिकल कॉलेज है, वडनगर में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से भी प्रभु जी के लिए वरीयता में इनको चिकित्सीय सेवाएं मिलती हैं और लोगों के इतना अहोभाव है प्रभु जी के प्रति, इनके राशन का, खाने का, कपड़ों का, जो भी आवश्यकताएं होती है वो आगे से आगे हमें सहयोग मिल जाता है। हमें इनके खर्चे के लिए किसी से डोनेशन मांगने की आवश्यकता नहीं होती है और ना हम मांगने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो आश्रम है, ये जो पूरा परिसर है, एक सेवा क्षेत्र है और इसमें हम सब तन मन धन से सेवा करने में जुटे हुए हैं और हम लोगों से आह्वान करते हैं कि वो भी इस सेवा क्षेत्र में जुड़ें और हमें अधिक से अधिक सेवा करने का अवसर दें। हमारा ये जो आश्रम है, अपना घर आश्रम, यहाँ पर मुनि निर्भय सागर जन कल्याण समिति के अंतर्गत यहाँ कार्यरत है, पर उसका प्रधान कार्यालय भरतपुर में है, जहाँ से ये संचालित होता है। तो भरतपुर से जो इसके जो मूल संस्थापक हैं वो डॉक्टर दंपति हैं और इस प्रकार हमारे 40 आश्रम इस समय कार्यरत हैं और अभी वहाँ पर सेवाओं का इतना बड़ा विस्तार हो रहा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा आश्रम बनने जा रहा है। वहाँ पर उस समय 11,000 बेड की व्यवस्था हो जाएगी। अभी 3,000 बेड की व्यवस्था है, 8,000 नए बेड की व्यवस्था होगी। वहाँ विभिन्न प्रकार की सेवाएं रहेंगी और वहाँ पर उनका अपना खुद का भी एक अस्पताल है।
HIV का अलग से वार्ड है, TB का अलग से वार्ड है। तो प्रयास यही है कि किसी भी प्रकार का जीव हो, उसकी कोई भी बीमारी हो, तो वो वंचित ना रहे। ये सेवा भाव से ही ये आश्रम कार्य करता है।